Hello, guys. Welcome back to Entrance Yog. As you all know, today was the exam, uh, law entrance exam था जामिया का. So I'll be discussing the answer key. Specifically, मैं discuss करूँगी legal वाला part. Okay. And I'll be discussing the set D. And जो answer key है, definitely जो जामिया answer key release करेगा, it there are chances कि शायद there could be a slight variation in the answer key that I shared and that the जामिया will share because देखो कुछ चीजें स्टैटिक पोर्शन होती हैं जैसे कि पर्टिकुलर डे कब सेलिब्रेट हो रहा है दैट विल बी सेम फॉर एवरीबडी बट कुछ चीजें होती है जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू डिसाइड ऑन पर्टिकुलर प्रिंसिपल बट प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे व्हाट हैपेंस इज कि जामिया डू हैव अ may have a different perspective deciding those questions so हो सकता है there could be slight variation not that कि होगा ही but there could be बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरी जो केपेबिलिटी है उसके हिसाब से जो बेस्ट आंसर हो सकता है आई एम प्रोवाइडिंग यू विद दैट सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट yeah so first question is human rights day is observed on 10th of December in commemoration of adoption of the UDHR का adoption हुआ था उस दिन okay RIT Foundation versus Union of India is an important case related to marital rape. Recently, which state legislature has enacted UCC? It's Uttarakhand. Trespass to chattel, goods or personal property is an intentional interference with the possession of personal property possibly causing injury. देखो trespass to chattel क्या होता है? Chattel could be the goods, it could be the personal property as well. ठीक है? ये क्या होता है? It's a personal property के साथ intentionally interference होता है and that causes some harm. And there are three elements to it: lack of consent, in the interference with the property, the interference with the property must result in actual harm, the interference must be intentional, lack of consent होना चाहिए ठीक है प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस करने के वक्त क्या होना चाहिए जिसके प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस हो रहा है उसका कंसेंट नहीं था इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी में हुआ उसकी वजह से इट माइट कॉज सम हार्म टू द प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस जो हुआ वो इंटेंशनल हुआ नाउ कमिंग टू द फैक्ट्स Rajesh left his log book on his desk in the office. His colleague Naresh saw it lying there and thought he would take it and cross check the records. Even though it belonged to Rajesh, while checking the records, Naresh accidentally split ink on the logbook and it was damaged to a great extent. It was only copy Rajesh had. See facts में क्या हुआ राजेश ने अपना लॉग बुक छोड़ दिया था अपने डेस्क में ऑफिस में ठीक है इसके कलीग नरेश ने उसको उठाया सोचा कि मैं क्रॉस चेक करूंगा रिकॉर्ड्स ठीक है इवन दो राजेश का था ठीक है while checking the records Naresh accidentally split the ink on the logbook और logbook पे उसका ink गिर जाता है ठीक है and it was got damaged as well so and I just only had that particular logbook ठीक है so अब the question is कि क्या यहाँ पे trespass हुआ है क्या नरेश ने trespass किया है राजेश के logbook में logbook उठा के in spite of knowing the fact that it belonged to Rajesh so the correct option would be yes. Rajesh may sue Naresh for trespass to chattel as he intentionally interfered with his property without consent and caused harm to it. Yeah, so uh, moving forward, pendant light means a pending matter. What is the maximum strength of Lok Sabha prescribed by the Constitution? It's D, 552 members as per Article 81. Cavit emptor means let the buyer be aware. Sarah put a pole across alley. During the night, Jack came galloping on a horse. The horse stumbled over the pole and Jack was thrown away. He suffered from a broken arm. What are the consequences of this case? देखो एक alley था alley मीन्स तो ना narrow lane को alley कहते हैं वहां पे उसने एक पोल रख दिया था सारा ने एंड रात में जैक आता है अपने हॉर्स पे बैठ बैठ के ठीक है हॉर्स जो होता है वो पोल पे फंस के वो फंस जाता है तो वो गिर जाता है हॉर्स हॉर्स स्टम्बल हो जाता है जिसकी वजह से जैक क्या होता है जैक गिर जाता है so Jack suffered a broken arm so what are the consequences of this case so it would be
contributory negligence. Why? देखो, सारा was negligent on her part because उसने एक पतली सी गली में एक पोल रखा. देखो, अगर वहां पे जैक नहीं भी आता ना, कोई छोटा बच्चा आता चलते हुए या कोई इंसान आता तो भी वो गिर जाता, तो उसके लिए वो सारा वुड बी solely liable for that particular act. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रात में जैक हॉर्स से आ रहा है वो पतले से लेन में, तो तुम्हें नहीं लगता कि जैक भी यहाँ पे नेग्लिजेंट है? जैक के एक्ट भी एक नेग्लिजेंट एक्ट है. सो हियर जैक वुड आल्सो Jack would have contributed, Jack had also contributed in this particular negligent act. So the answer is both are liable for contributory negligence. Who was the first chief information commissioner of India? It's Wajahat Habibullah. Question number 10. All minorities, whether based on religion or language, shall have a right to establish and administer educational institution of their choice. Okay. सारे minorities के पास चाहे वो minorities based on religion हो या language हो, they have a right to establish and administer educational institution of their choice. Reason क्या है? Institutions established by minorities are not entitled to governmental aid, and government is not under obligation to give aid. जो institutions established होंगे minorities करेंगी, वो उनको गवर्नमेंटल एड मिले ना मिले उनके लिए इंटाइटल्ड नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट अंडर ऑब्लिगेशन भी नहीं होता कि उनको एड प्रोवाइड करे. एंड दिस इज ट्रू एज पर आर्टिकल 30 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which article of Indian Constitution deals with establishment of high courts? It's Article 214. Every agreement in restraint of marriage of any person other than minor is void. हर agreement जहाँ पे marriage के लिए restraint लगाते हैं, वो सारे agreements क्या होते हैं? Void, other than कि person जिसके लिए marriage restraint लगा रहे हैं वो minor है. सलमान खान died from COVID-19 infection. उसके दो co-widows थे, सुल्ताना और राजिया. They entered into agreement that if any of them will remarry, अगर उनमें से कोई भी एक remarry करेगा, तो they will forfeit her right to share in the deceased husband's property. मतलब husband property में जो right था, अगर कोई भी remarry करेगा तो they will forfeit that particular right. ठीक है, right to property वाला. So यहाँ पे this agreement is void because it was in restraint of marriage. अब क्योंकि उनको property में right चाहिए, तो अब वो प्रॉपर्टी में राइट लेने के लिए, क्लेम करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी, वो क्या करेंगे? वो शादी नहीं करेंगे. शादी नहीं करेंगे देन दैट्स अ एग्रीमेंट which restrains particular marriage, so it's a void agreement. What is the legal doctrine of respondent superior in tort law? Respondent superior मतलब होता है let the employer be liable for the tortious act of the employees. Find out the odd one. General Assembly, Human Rights Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and Secretariat. The correct answer is Trusteeship Council because ये जो बाकी General Assembly है या Human Rights Council है, Economic and Social Council है या International Court of Justice and Secretariat है, they are the organs of the UN, but Trusteeship Council is not an organ of the UN. Doctrine of frustration is associated with contract law. Doctrine of frustration कहता है कि अगर मतलब it simply says that the performance of contract becomes impossible because of this particular terms वो contract agree किए थे वो exist ही नहीं करता है, ceases to exist. So performance of contract क्या हो गया? Impossible हो गया है. That is what doctrine of frustration says. What is the meaning of maxim nemo judex in sua causa? No person can be a judge in his own case. What is cause list? Cause list क्या होता है? Cause list लगता है कोर्ट में, कोर्ट के जो भी कोर्ट नंबर होता है उसके कोर्ट के बाहर लग रहा होता है कि कौन से मैटर्स आज कोर्ट सुनेगी. A list of matters to be heard by the court on any day. Which constitutional article defines provision in respect of financial emergency? It's Article 360. The main objective of UNFCCC, यहाँ पे UNCC नहीं आएगा, UNFCCC आएगा, United Nations Framework Convention on Climate Change. Its main objective is to stabilize greenhouse gas concentration in the atmosphere. Okay. Next question is, a person is said to be of sound mind for the purpose of making contract if at a time when he makes contract, he is capable of understanding it and performing a rational judgment as to its effect upon his interest. Person sound mind का
तब होगा कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने में जब ही इज केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड वो कर क्या रहा है और एक रैशनल जजमेंट फॉर्म कर सकता है. Mr. X, who is usually of sound mind but occasionally of unsound state of mind, enters into contract with Mr. Y when he was unsound state of mind. Mr. Y, having come to know about this fact afterwards, wants to file a suit against Mr. X. See, यहाँ पे क्या Mr. X can enter into contract when he was unsound mind? No, the essentials of the contract fulfill नहीं होता है. The party has to be competent to enter into contract. And competency includes that a person has to be sound mind and the person has to be major. So contract enter ही नहीं कर सकता. Mr. X cannot enter into contract because he's of unsound mind when he entered into contract. Option A is correct. The practice of triple talaq was held unconstitutional by Supreme Court in the case of Shaira Bano versus of India. The convention aims to conserve and sustainably manage wetlands. Is Ramsar Convention. Testator means a person who makes the will. जो will बनाता है उसको testator कहते हैं. Which of the following is the oldest high court in India? Is High Court of Calcutta. Dash regulates manufacture, storage, distribution, and sale of food articles in India. Is FSSAI. The International Criminal Code is established by Rome Statute. Which article of Constitution deals with vicarious liability of the state? It's Article 300. Electronic or digital records will have the same legal effect as paper records as per भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि रिप्लेस कर रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को. ओके. The Bharatiya Nyaya Sanhita 23 adds new offences. One of them is terrorism. Grievous hurt नहीं है. Grievous hurt और murder तब आएगा जब ग्रुप वाला आएगा. उसमें एक्सेप्शन केसेस है, कुछ उसके ग्राउंड्स मेंशन है. तो ये तो नहीं है, तो पहले से ऑलरेडी डिफाइंड था आईपीसी में. न्यू ऑफेंसेस है यहाँ पे है टेररिज्म. Innuendo plays a crucial role in the tort of defamation. Innuendo means indirectly. How many non-permanent members are there in UN Security Council? It's 10. Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita mandates for forensic investigation for offences punishable with at least 7 years. 7 years होगा तभी forensic evidence, जिसमें 7 years punishment है वहाँ पे forensic investigation is mandatory. Perjury in law means intentionally making false statement in court of law. Intentionally making false statement in court of law. India is not a party to which the following international treaty is it's a convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. General Data Protection Regulation is a law on data protection of European Union. What is the European Court of Human Rights located? It's located in Strasbourg. In a civil action for defamation, the truth of defamatory matter is an absolute defense. Defamatory matter का अगर truth prove कर दे तो is an absolute defense. However, the burden of proving truth is on a defendant. जो defendant है जिस पे हमने case लगाया है, that will be the person जो prove करेगा. He is liable if he does not successfully discharges this burden. अगर वो prove नहीं कर सकता है, उसने जो statement लिखे हैं, जो defame किया है किसी person को statement के through, वो truth नहीं है, तो he will be liable for defamation. Now coming to facts, D, who was the editor of Local Weekly, published a series of articles mentioning that T, who was government servant, issued a false certificates, accepted bribe, adopted corrupt and illegal means to mint money, and was a mischief monger. B, P, who brought a civil action against D, who could not prove the facts published by him. देखो, D ने कुछ defamatory statement pass किया, ठीक है? I guess यहाँ पे the P नहीं होगा, यहाँ पे T होगा. Okay, यहाँ पे दोनों same person है, क्योंकि option भी वैसे ही दिया हुआ है. D, who was the author of Local Weekly, published a series of articles mentioned that T, who was a government servant, and उसके against defamatory statements pass की, मतलब publish किया, ठीक है. And T ने ही civil action लेके आया है against D, जो कि prove नहीं कर पाया अपने facts. So what would be the correct answer? D would be liable since he could not prove the facts published by him. Option A is correct. Who is authorized to initiate the process of impeachment of President of India? It's either House of Parliament, but the ground is
they have it. He has violated the constitutional principles. The case concerning relating to electoral bond is uh, it's B. Association for Democratic Reforms versus of India. It's a landmark case, अभी का case है recent ये, and इस case में court held this particular electoral bond as unconstitutional for violating the rights of the voters, their right to information. Who can be the chairperson of NHRC of India? One who has been the judge of Supreme Court or CJI. So option A is correct. क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं हम लोग। 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेट इज रामनाथ कोविंद। अ हाई लेवल पैनल हेडेड बाय रामनाथ कोविंद हैज़ रिकमेंडेड रोड मैप फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, 42 देखते हैं। इन मार्च 2024 द लेजिस्लेचर ऑफ fill in the blanks passed a bill that could potentially lead to the banning of popular social media platform TikTok in the country. So 42 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डेट इज़ यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं 43rd, हु इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा। तो आपके मल्लिकार्जुना खड़गे, ऑप्शन डी। विच फुटबॉल टीम वॉन द चैम्पियंस लीग इन 2023। 44 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ गूगल, डेट इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी 45। नेक्स्ट देखते हैं 46, फिल इन द ब्लैंक्स वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ टर्की इन 2023। तो टर्की का प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए 2023 में। 46 का आपका ऑप्शन डी, डेट इज़ रिकैप अर्दगॉन। 47, वेयर इज़ इंडियाज फर्स्ट फूड म्यूजियम लॉन्च। 47 का आपका ऑप्शन डी, डेट इज़ तंजावुर। 48 देखते हैं, हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 48 ऑप्शन ए, अरुण गोयल। ये लोग थे, अरुण गोयल नहीं थे। 49 का द चीताज ऑफ प्रोजेक्ट चीता वाज ब्राउड फ्रॉम, कहाँ से हम ब्राउड कर रहे हैं। 49 का ऑप्शन डी, डेट इज साउथ अफ्रीका एंड नमीबिया। नेक्स्ट, द अर्थ आवर इवेंट इज़ अ ग्लोबल एनुअल इन्विटेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए, WWF। क्वेश्चन 51, नेम द फेमस इंडियन गज़ल एंड प्लेबैक सिंगर हु पास्ड अवे इन फरवरी 2024। 51 का ऑप्शन बी, डेट इज़ पंकज उदास। 52, अभिजीत विनायक बनर्जी, एन इंडियन बोर्न naturalized American economist who won the Nobel Prize in 2019 is a professor at। 52 का ऑप्शन सी, that is Institute of Technology। 53rd, who is the current chairperson of National Commission for Women। 53 का आपका ऑप्शन ए, that is रेखा शर्मा। 54 देखते हैं, who has been selected as torch bearer for the 2024 पेरिस ओलंपिक्स। 54 का आपका ऑप्शन ई, अभिनव बिंद्रा। 55, इमरान खान इज़ द फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। ऑप्शन बी, पाकिस्तान तारीके इंसाफ। 56, विच एनिमेटेड फिल्म वॉन द बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म एट ऑस्कर्स 2024। ऑप्शन सी, that is Spider-Man Across the Spider-Verse। 57, Kavach technology is related to। 57 ऑप्शन डी, सी, that is railways। 58, FAME India scheme is related to B, automobiles। BARD is the name of artificial intelligence based chatbot developed by which institution। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज गूगल। क्वेश्चन नंबर 60, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। ऑप्शन ए, हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं 61,
Who has emerged victorious in the Vijay Hazare Trophy 2023-24? 61 का आपका ऑप्शन डी, दैट इज हरियाणा. 62, which company has developed Just Walk Out, a cashier-less shopping technology? क्या होगा 62 का आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, दैट इज अमेजोन. 63, who won the Best Actor Award at Oscars 2024? ऑप्शन ए, सिलियन मर्फी. 64, Hambantota Port which was seen in the news is in which country? 64 का आपका ऑप्शन बी, दैट इज श्रीलंका. 65, नेम द जर्मन फुटबॉल लेजेंड विनर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर एंड हेड कोच हु पास्ड अवे रिसेंटली. 65 का आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रेंच बैकबॉनर. क्वेश्चन नंबर 66, became the first South Asian nation to register same sex marriage. तो ऑप्शन 66 का ऑप्शन डी, दैट इज नेपाल. हु इज़ द फाउंडर ऑफ ओपन AI? ठीक है, कौन है फाउंडर? 67 का ऑप्शन डी, दैट इज सैम एल्टमैन. 68 का विच सिटी विल बी डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट AI सिटी? 68 का ऑप्शन बी, लखनऊ. 69, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड? ऑप्शन बी, कुवैती दिनार. क्वेश्चन नंबर 70, हु इज़ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? 70 का आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, डेट इज़ अनिल चौहान. अब आता है आपका इंग्लिश का पोर्शन, जो कि पैसेज है, तो पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा. मैं इसका आंसर बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन. मे बी इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो फिर करेक्ट होगा आपका फिर जब आंसर की रिलीज़ होगा तब. तो 71 का आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज. 72 का आपका ऑप्शन सी. 73 आपका होगा ऑप्शन बी, दैट इज टू मेंटेन द रेजिडेंशियल कैरेक्टर ऑफ द नेबरहुड एंड प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इट्स रेजिडेंट्स. तो ये पढ़िएगा आपको. 74 का आपका होगा ऑप्शन सी, दैट इज द बाय लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. 75 का ऑप्शन बी. 76 का आपका करेक्ट होगा डी, ऑप्शन डी. ठीक है, 77 ऑप्शन बी. 77 का ऑप्शन बी. 78 का ऑप्शन सी. 78 ऑप्शन सी, ये आपको प्रीवियस PYQ में भी आए हैं. 79 का क्वेश्चन 79 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज़ ऑब्लिगेटरी. 80 का क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन डी. 81 का आपका ऑप्शन ए, डीलिंग विथ अ बैड पर्सन लाइक हिम इज ऑलवेज अ नीट अफेयर्स. ठीक, ऑप्शन ए 81 का. 82, द लीडर माइट हैव हैड सम covert reason for the change of his political affiliations. क्वेश्चन नंबर 82 का आपका ऑप्शन बी, ऑब्वियस. यहाँ पे क्या है, आपको एंटोनिम अंडरलाइन करना, एंटोनिम टिक करना है, तो करेक्ट एंटोनिम 82 का ऑब्वियस होगा. 83, द टोटल आउटले ऑफ द फर्म इज़ ह्यूज. क्या आउटले का जनरली 83 का ऑप्शन सी होगा, एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट देखते हैं 84, इट वॉज मोमेंटस डिसीजन. क्या होगा इसका, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन 84 का. 85, ही यूज टू रब शोल्डर्स विथ पावरफुल पीपल. ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका. 87 का देखते हैं, 86 में क्या होगा, इंजंक्शन इज एन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट कमांडिंग समवन टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ स्पेसिफिक एक्ट. ये क्या इंजंक्शन जो है कोर्ट ऑर्डर इशू करेगी किसी पर्सन को किसी स्पेसिफिक एक्ट को करने के लिए या फिर नहीं करने के लिए, दोनों में इंजंक्शन यूज होगा. 87, आई रिक्वायर ऑप्शन बी, दैट इज बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल फॉर गेटिंग द लोन सैंक्शन फ्रॉम द बैंक. 87 का ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 88, द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड विद ड्यू सोलेमिनिटी. मे बी ये बी और डी में मैं भी कन्फ्यूज हूँ, तो देख लीजिएगा आप लोग. प्रेम वाज कॉट बाय द पुलिस बट हिज
89 का आपका करेक्ट होगा सी, दैट इज अकम्पलिश इज स्टिल मिसिंग। 90 लव फॉर द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी फिलेंथ्रॉफी। 91 2 इसका ऑप्शन सी होगा इज ह्यूमन, ठीक है। और 92 का माउंटेनिंग हिज हॉर्स द पुलिसमैन, तो 92 का आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, डेट इज रोड डाउन। 93 देखते हैं। 93 आपका इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है, तो 93 आप लोग पढ़िएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। 92 का 93 का ऑप्शन सी। 94 का 94 भी आपका वही है, इनडायरेक्ट स्पीच, तो 94 का आपका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 95 यू हैव बीन सफरिंग, 95 का क्या होगा ऑप्शन सी। 96 का ऑप्शन बी फॉर्मल एक्यूजेशन और चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट समवन इज नोन एज इंडिक्टमेंट, ठीक है। किसी के लिए फॉर्मल एक्यूजेशन और चार्ज होता हो तो उसे इंडिक्टमेंट कहते हैं, किसी भी पर्सन के लिए। व्हाट डज द लैटिन टर्म प्रो बोनो, प्रो बोनो का मतलब क्या होता है, 97 का ऑप्शन सी होगा, फॉर द पब्लिक गुड। प्रो बोनो क्या, प्रो बोनो आपको आगे दिखेगा, मीन्स फॉर द पब्लिक गुड, ये एक वेलफेयर की तरह होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है पब्लिक गुड के लिए। आगे देखते हैं 98 का ही केम ऑफ हिज ऑन, 98 का आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, दैट इज वायलेशन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 99 री राइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, तो ये का एक्टिव एंड पैसिव का क्वेश्चन है, 99 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 100 का क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन बी फॉर विच द ही रोड द लेटर बिकॉज, ठीक है। ये आपको अंडरलाइन है, इसको बेस्ट अल्टरनेटिव मीन्स इसका क्या होगा अल्टरनेटिव, तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपको 1 ईयर। आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं। 102 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 102 इसका करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ ए 240 किलोमीटर 102 का। 103 ऑप्शन बी 36.95%। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उतना डीपली, क्योंकि इसके आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ विजिट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 104 डेट इज़ डी 2496, 105 का आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी 50%। 106 106 आपको ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 107 ऑप्शन सी डेट इज़ 12.5%। 108 का आपका ऑप्शन ए 57%। 109 फाइंड द ओड वन आउट इन द सीरीज, तो 109 का आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 110 ऑप्शन बी 12 डेज, ठीक है। अब आता है आपका यहाँ से थोड़ा, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया इन साउथ अमेरिका, तो 111 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा ब्राज़ील। 112 देखते हैं, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स कॉल्ड, अर्थक्वेक के स्टडी को क्या कहते हैं आपको, तो 112 का ऑप्शन डी सिस्मोलॉजी, जिस तरह से आपको सिस्मोग्राफी आपने पढ़ा होगा उसी तरह से। मैच द फॉलोइंग कंट्रीज़ विद देयर कैपिटल, तो यहाँ पे क्या है कंट्रीज एंड कैपिटल मैच करना है, तो 113 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डेट इज़ आपको इस तरह से डी का आपको डी का 4, ठीक है, सी का 1 एंड बी का 3, इस तरह से आपको होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच सिविल राइट्स लीडर गेव द फेमस आई हैव अ ड्रीम स्पीच, किसने दिया था, 114 का ऑप्शन डी होगा मार्टिन लूथर किंग। विच रिवर फ्लॉज थ्रू द ग्रैंड कैन, इसका क्या होगा 115 का ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, बैंक रेट इज़ अ रेट एट विच, तो 116 का ऑप्शन ए होगा द रिजर्व बैंक इन इंडिया गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये क्या होगा आपको, ये बैंकिंग में आपको पढ़ना था इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। हु ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, 107 का क्वेश्चन आंसर आपका ऑप्शन सी दैट इज थॉमस जेफरसन। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, तो बहरहाल
क्वेश्चन नंबर 118, हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड प्लेड अ की रोल इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो 118 का आपका ऑप्शन डी होगा, डेट इज़ दादा भाई नौरोजी। 119, हु इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ पॉप? 119 का ऑप्शन सी, मैडोना। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, which is the only country in the modern world that does not have a rectangular or square national flag? तो 120 का ऑप्शन बी, that is नेपाल। Let's move further. Question number 121, which is the last language to be found on the language panel of an Indian currency note? इंडियन करेंसी नोट के लैंग्वेज पैनल में जो लास्ट लैंग्वेज है वो कौन सा होता है? 121 का ऑप्शन ए, दैट इज़ उर्दू। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका? क्वेश्चन नंबर 122, इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, लेक विक्टोरिया। नेक्स्ट देखते हैं 123 का आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, डेट इज़ जूलियस सीजर। 124 का ऑप्शन बी, डेट इज़ रेनहोल्ड मैसनर। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन? ये क्या होगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 25 का देखते हैं, 5 मेंबर स्टेट्स विच कैन वेटो डिसीजन मेड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर? क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये 5 कंट्रीज थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, विच मुगल एम्परर वाज द फादर ऑफ जहानारा बेगम? तो 120 ये आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मिडेवल हिस्ट्री का। 126 का आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, डेट इज शाहजहाँ। 127, होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय? तो 127 का ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखते हैं 128, वेयर डिड द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप टेक प्लेस? कहाँ हुआ था पहला? तो 128 का ऑप्शन सी, डेट इज़ उरुग्वे। 129, शाहरुख खान सफर्ड फ्रॉम विच डिजॉर्डर इन द फिल्म माई नेम इज़ खान? माई नेम इज़ खान जो मूवी थी उसमें किस डिजॉर्डर से सफ़र कर रहे थे शाहरुख खान? ये क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन सी, डाउन सिंड्रोम। 129 का ऑप्शन ए, एस्पर्ज सिंड्रोम। नेक्स्ट देखते हैं 130, विच कंट्री इज़ नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ ड्यू टू इट्स वास्ट रेन फॉरेस्ट? 130 का ऑप्शन सी, डेट इज साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट देखते हैं 31, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर डिजास्टर दैट अकर्ड इन यूक्रेन इन 1986? तो क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 132 देखते हैं, विच एनिमल हैज़ द लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ एनी क्रिएचर ऑन अर्थ? तो 132 का ऑप्शन डी, ब्लू व्हेल। 133, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड? तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। जैसा कि अगर आप लोगों ने मूवी देखा होगा तो वहाँ भी ये दिखाया गया है। रायसीना हिल इज़ लोकेटेड इन? क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन डी, दैट इज़ दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस? कौन थे पहले प्राइम मिनिस्टर? क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं 136, नेम द मूवमेंट स्टार्टेड इन द 1970s बाय द माउंटेन वुमेन ऑफ नॉर्थ इंडिया हु ह्यूड ट्रीज टू सेव देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन? क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चिपको मूवमेंट। ये आपको पता था, चिपको मूवमेंट क्या है? पेड़ को पकड़ करके खड़े हो जाते थे कि उन्हें काटने नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 137, द हेड क्वार्टर्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड एट? 137 का आपका ऑप्शन बी, बोथ वाशिंगटन DC। दोनों का कहाँ है? वाशिंगटन DC में। 138 देखते हैं, व्हाट डज SUV स्टैंड फॉर द ऑटोमोटिव वर्ल्ड? SUV का फुल फॉर्म क्या होगा? 138 का ऑप्शन सी, that is sports utility vehicle. 139, which organization aims to promote sustainable management of the world's forest? क्वेश्चन नंबर 139 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, that is FAO. नेक्स्ट देखते हैं 140, who is known as the Greek god of Bollywood? तो क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन सी, ऋतिक रोशन। सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं 141, which is the most spoken language in the world among the Indian languages after Hindi?
क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन बी दैट इज़ बंगाली। 142 हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन बी। 143 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? 143 का ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अर्थ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? क्वेश्चन 145 का ऑप्शन बी अप्रैल 2022। 146 का देखते हैं, द फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिस्ट द रिडेम्नर इज सिचुएटेड इन, कहाँ है आपका 146? क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन सी दैट इज रियो डी जेनेरो। क्वेश्चन नंबर 147, विच सिटी एक्सपीरियंस्ड अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन 2011, तो इसका क्या होगा? 147 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 148 देखते हैं, विच एक्टर प्लेड द आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ जेम्स बॉन्ड इन द लॉन्गेस्ट टेन्योर, 148 का आपका ऑप्शन ए डैनियल। 149 देखते हैं, हेपेटाइटिस बी इज़ अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन डी दैट इज लीवर। 150 देखते हैं, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन ए दैट इज मार्स। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका